Right, beta. Atrophic rhinitis. Um, it's a condition. What happens in this is, let me tell you, if this is the nasal cavity and the mucosa like this, and this is the palate, below is the mouth, ज़्यादा कुछ कर्व हो गया, लेकिन खैर, and this is the blood vessel supplying to the nasal mucosa and keeping your nose and its mucosa healthy, happy. But what happens that atrophic rhinitis is the condition जिसमें ये आपकी जो nasal mucosa है ना बेटा पूरी, इसकी chronic inflammation और atrophy हो जाती है, बड़ी thin होती है ये mucosa और chronically inflamed रहती है. Why? Look, atrophic rhinitis is the chronic inflammation and atrophy and thinning of the nasal mucosa as a result of some problems in the blood supply. What problems? That if this is the supply to the nose, it may be any any artery, तो इसकी अराउंड फाइब्रोसिस हो जाए या फिर एंड आर्टराइटिस हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए स्मॉल आर्टरीज़ की, टर्मिनल आर्टीरियोल्स की, तो उससे क्या होगा, ब्लड सप्लाई आपके म्यूकोज़ा को नहीं मिलेगा बेटा, नेज़ल म्यूकोज़ा को, तो नेज़ल म्यूकोज़ा में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, एट्रोफी, थिनिंग हो जाएगी. सही है? समझ आई बात? So, atrophic rhinitis is the condition in which the nasal mucosa shows chronic inflammation. The mucosa becomes very much thin, very much atrophied. Why? Because of some problem in the blood supply. Problem in the blood supply. What is the problem in the blood supply? The arteries have become very much narrow, very much fibrosed, very much constricted. Why did this occur? So actually we'll be discussing it in the primary and secondary atrophic rhinitis, two types. The primary atrophic rhinitis, the exact cause is unknown, but कुछ factors हैं जिसकी वजह से हमें समझ आता है कि क्यों ये blood vessels जो है वो affect हुई. It may be due to the chronic rhinosinusitis if patient suffered from the chronic rhinosinusitis, और उसके बड़े अरसे के बाद patient की जो blood vessels हैं वो कुछ इस तरीके से scar हो गई और या फाइब्रोटिक हो गई और फिर अल्टीमेटली एट्रोफिक राइनाइटिस डेवलप हुई. सही है? पॉसिबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो थे आपके क्रॉनिक राइनोसाइनसाइटिस में, क्लिप्शेला ओजेनी, जिसको दैट्स एक्चुअली प्रेस, बैसिलस, डिप्थेरॉइड एंड द वल्गैरिस, ऑटो इम्यून ओरिजिन हो सकता है जिसकी वजह से ये ब्लड वेसल बहुत फाइब्रोस हो जाएं. या सो Actually, so far we learned that atrophic rhinitis is the condition जिसमें nasal mucosa में chronic inflammation चलती है, nasal mucosa बहुत ज़्यादा thin हो जाती है, atrophied हो जाती है. फिर हमने सोचा क्यों, उसकी वजह जो है वो blood supply में थी. Blood supply, the arteries have become narrow, they have become inflamed, they have become fibrotic. Okay, now the thing that that came into your mind, that why is this problem with the blood vessels? So we divided it into two types: the primary atrophic rhinitis, the secondary atrophic rhinitis. Primary, in which cause is not known, but we can think about that we developed previously chronic rhinosinusitis, and after that chronic rhinosinusitis, after a long period of time, this problem occurred. But this is not the exact etiology, right? And yeah, this is it. चलें जी, हो गई ब्लड सप्लाई अफेक्ट हो गई और देयर इज़ एट्रोफिक राइनाइटिस. व्हाट विल हैपन? जो यहाँ पे सिलेटेड एपिथेलियम थी वो डिजनरेट होगी. कैसे होगी एट्रोफी, ये भी तो डिस्कस करना है ना. तो म्यूकोसा की जो एपिथेलियम है वो सिलेटेड एपिथेलियम और डिजनरेट हो जाएगी. जो ग्लैंड्स हैं वो भी डिजनरेट हो जाएंगे. सो देयर इज़ डिजनरेशन ऑफ द सिलेटेड एपिथेलियम एंड द सीरोम्यूसिनस ग्लैंड्स ऑफ द नेजल कैविटी. जाहिर सी बात है बेटा, ब्लड सप्लाई नहीं दोगे तो एपिथेलियम नरिश नहीं रहेगी, डिजनरेट हो जाएगी, सीरोम्यूसिनस ग्लैंड्स भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. तो क्या होगा, वो जो डिजनरेटेड सिलेटेड एपिथेलियम थी यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों में जमा हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट, अडेरेंट, बड़े सख्त, बड़े चिपके हुए क्रस्ट होंगे. ठीक है, साथ में जो टर्बिनेट्स की बोन है वो भी जो है उसकी भी रिजॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से अब जाहिर सी बात है म्यूकोसा एट्रोफिड हो गई है, टर्बिनेट्स एट्रोफिड हो गए, तो स्पेस तो अंदर कैविटी की बढ़ जाएगी ना. ठीक है, इस तरीके से पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा अगर उसको प्राइमरी एट्रोफिक राइनाइटिस है. सो ही कम विथ बोथ साइड्स ऑफ द नेजल कैविटीज़ आर इन्वॉल्व. खास करके ये कंडीशन फीमेल्स में होती है अराउंड प्यूबर्टी. There will be the foul smelling from the nasal cavity of the patient because of the chronic inflammatory condition and atrophic state of the mucosa.
पेशेंट को एनोस्मिया होगी, लाजमी होगी बेटा, क्योंकि पूरी एपिथेलियम ख़त्म हो चुकी है, तो ऑल्फेक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन होगी, क्यों नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन होगी? हालांकि हमने तो कहा कि म्यूकोजा पूरी एट्रोफिड हो गई है। इवन आफ्टर द एट्रोफिक स्टेट फिर भी नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन। ये देखो, अगर आपकी ये नोज़ है बेटा, सही है, तो इसकी म्यूकोजा बहुत थिन हो चुकी है, बहुत थिन के अंदर बहुत स्पेस बन चुकी है, उसके बाद भी ऑब्स्ट्रक्शन। क्यों ऑब्स्ट्रक्शन होती है? क्रस्ट की वजह से। जो एपिथेलियम यहाँ से डीजनरेट होती है, वो यहाँ पे छोटे छोटे क्रस्ट बनाती है, हार्ड, जो यहाँ से निकलना मुश्किल होता है, बड़े अडेरेंट होते हैं, तो इसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होती है, सही है। सो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन इज यूजुअली प्रेजेंट इवन व्हेन द नेजल कैविटीज आर वाइड। नेजल कैविटीज वाइड क्यों हुई? मिकोजा की एट्रोफी की वजह से, टर्बिनेट की एट्रोफी की वजह से नेजल कैविटी खुल गई, लेकिन फिर भी ऑब्स्ट्रक्शन है। क्यों? क्योंकि क्रस्ट जमा हो रहे हैं ना बेटा, मिकोसिलियरी क्लियरेंस खत्म हो गई है, सिक्रेशंस जमा हो रही हैं, क्रस्ट जमा हो रहे हैं, ठीक है। अब लेकिन मसला ये है कि क्रस्ट को जब रिमूव करते हैं तो ब्लीडिंग होती है, एपिस्टेक्सिस होती है, सही है। एग्जामिनेशन करेंगे तो कैविटीज़ विल बी फुल ऑफ द क्रस्ट, म्यूकोजल एट्रोफी मिलेगी, टर्बिनेट एट्रोफीड होंगे, दैट्स इट। तो क्लिनिकल पिक्चर क्या आई बेटा? दोनों साइड नाक की अफेक्टेड होती हैं, खवातीन में ज़्यादा ये कंडीशन होती है, नाक से फाउल स्मेल आएगी, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन होगी, हालांकि एट्रोफी है। नेज़ल कैविटीज वाइड होने के बावजूद भी ऑब्स्ट्रक्शन होगी, क्यों? क्योंकि क्रस्ट की वजह से, क्रस्ट जमा हो जाते हैं डिजेनरेटेड एपिथेलियम के, सही है। और आप देखोगे दोनों तरफ की जो मिकोजा है वो एट्रोफीड है, एंड दैट्स इट। देन कम्स द ट्रीटमेंट। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है इसके अंदर क्रस्ट को रिमूव करना। ये इतने हार्ड डिजेनरेटेड एपिथेलियम के क्रस्ट होते हैं कि उनको जब आप रिमूव करते हो तो ब्लीडिंग होती है। तो फिर इसको क्या करें? रिमूवल ऑफ द क्रस्ट बाय नेजल अल्कलाइन डाउचेस। अल्कलाइन डाउच यूज़ करके उसको रिमूव करते हैं। इससे क्या होता है कि क्रस्ट लूज़ हो जाता है, और फिर देन व्हाट यू डू, यू रिमूव द थिक टीनेशियस नेजल सीक्रेशन, राइट। तो काम आसान हो गया। पहले प्रॉब्लम ये थी कि बहुत हार्ड क्रस्ट था, इतना हार्ड क्रस्ट था कि जब आप उसको रिमूव करने की कोशिश कर रहे थे तो ब्लीडिंग हो रही थी। लेकिन अब आपने क्या किया? लेकिन अब आपने क्या किया बेटा? नेज़ल अल्कलाइन नेज़ल डाउच का इस्तेमाल किया। नेज़ल अल्कलाइन डाउच यूज़ करने से क्या होता है? क्रस्ट बड़ा लूज़ हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, और बड़ा इजीली निकल जाता है, ठीक है, बड़ा इजीली निकल जाता है, वरना तो हार्ड होता है बहुत। 25 पर, अच्छा, दोबारा ये क्रस्ट ना बने उसके लिए हम नाक में क्या डाल के रखते हैं? 25% ग्लूकोज ग्लिसरीन के ड्रॉप्स नोज़ में डालते हैं टू प्रिवेंट द न्यू क्रस्ट फॉर्मेशन, सही है। दिस 25% ग्लूकोज इन द ग्लिसरीन ड्रॉप्स इट आल्सो इनहिबिट्स द सेप्रोफिटिक इन्फेक्शन। तो क्रस्ट तो आपने रिमूव कर दिए, और दोबारा ना बने उसके लिए भी बंदोबस्त कर दिया। उसके अलावा क्या करें? एंटीबायोटिक्स, लोकल और सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स टू कंट्रोल द इन्फेक्शन, ठीक है। एंड some measures are taken to increase the the granular activity and the blood supply, because actually the problem is in the blood vessels. So उसके लिए हम क्या करते हैं? बाउच से पोटेशियम आयोडाइड देते हैं, हार्मोन थेरापी देते हैं, जैसे एस्ट्राडायोल देते हो, एस्टिलबेस्टेरोल देते हो लोकली सिस्टेमिकली, प्लासेंटल एक्सट्रैक्ट देते हो, और सिस्टमिक स्ट्रेप्टोमाइसिन देते हो। इससे क्या होता है कि खास करके हार्मोन थेरापी देने से ब्लड फ्लो रीस्टोर हो जाता है, सही है, और आपकी म्यूकोजा फिर हेल्दी होने लगती है, ग्रो करने लगती है। मेडिकल ट्रीटमेंट बेटा फेल हो जाए तो सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट इसका होता है एट्रोफिक, प्राइमरी एट्रोफिक राइनाइटिस का यंग्स ऑपरेशन। इन यंग्स ऑपरेशन बोथ द नॉस्ट्रल्स आर क्लोज्ड फॉर 6 months विच रिवर्ट्स द म्यूकोजल चेंजेस। अब जाहिर सी बात है बेटा, आप जब नाक आगे से बंद कर देते हो तो एक्चुअली यू रिड्यूस द एक्सपोजर which may make your mucosa healthy back. The wide nasal cavities can be narrowed back, right, by injection of the Teflon paste submucosally. आपको पता है ना बेटा, क्योंकि म्यूकोजा की एट्रोफी हो गई थी, और टर्बिनेट्स की एट्रोफी की वजह से आपकी जो नेज़ल कैविटी है वो इतनी वाइड हो गई थी, फिर उसको वापस नैरो करने के लिए आप इंजेक्शन देते हो टेफ्लॉन पेस्ट का सबम्यूकोजली, उससे ये चीज़ें सही हो जाती हैं। आल्सो द मॉइस्टनिंग ऑफ द नेज़ल कैविटी म्यूकोजा ज़रूरी है, क्योंकि इतने हार्ड क्रस्ट बन रहे हैं ड्राई एपिथेलियम में, तो उसके लिए मॉइस्टनिंग करनी पड़ेगी बाय डिलीवरिंग द पेरोटिड और एक्सटेंशन डक्ट इनटू द एंट्रम। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। सलाइवा की जो डक्ट है, पेरोटिड ग्लैंड या एक्सटेंशन डक्ट, वो सीधा एंट्रम में डाल देते हैं, साइनस के एंट्रम में या नोज़ में, ताकि सलाइवा जो है वो नोज़ में और
एंट्रम के अंदर आती रहे और जो नेज़ल म्यूकोज़ा है वो वाश होती रहे, साइनस की म्यूकोज़ा वाश होती रहे, वो ड्राई ना हो, उस पर क्रस्ट ना बने, सही है, वो म्यूकोज़ा मॉइस्ट रहे, सही है बच्चा। सो दिस इज द प्राइमरी एट्रोफिक राइनाइटिस एंड देन कम्स द सेकेंडरी एट्रोफिक राइनाइटिस एज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेज़ल म्यूकोज़ा एंड अल्टीमेटली एट्रोफी सेकेंडरी टू सम डिजीजेस आर सर्जिकल प्रोसीजर्स, जैसे कि सिफिलिस में, लेप्रोसी में, ल्यूपस में, या कुछ एक्सेसिव आप सर्जरी परफॉर्म करते हुए तो आपने एक्सेसिव टिश्यू रिमूव कर दिया तो एट्रोफी हो गई, जैसे कि एक्सेसिव सर्जिकल रिमूवल ऑफ द इन्फीरियर टर्मिनेट्स डीएनएस के ऑपरेशन के दौरान, ठीक है। आप क्या करते हो, एक्सेसिव टिश्यू रिमूव कर देते हो तो पीछे एट्रोफी हो जाती है, या फिर कुछ इन्फेक्शन मैंने बताया सिफिलिस, लेप्रोसी, ल्यूपस, तो सेकेंडरी टू दीज इन्फेक्शंस एट्रोफिक राइनाइटिस कैन अकर, सेकेंडरी टू लॉन्ग स्टैंडिंग साइनसाइटिस, सेकेंडरी टू रेडियोथेरापी, या secondary atrophic rhinitis can occur. The clinical pictures management is completely same as for the primary atrophic rhinitis. We'll now discuss some other conditions of the nose and the sinuses like the rhinitis sicca and others. Let me tell you beta. Here beta, after the atrophic rhinitis, the rhinitis sicca, it's a condition that affects the anterior third of the nasal cavity only. So if this is your nose and comes the, yeah, so this is anterior third of the nasal cavity is involved by this condition, and it occurs in person who work in hot, dry, dusty environment. What happens in this? There is periglandular fibrosis, metaplasia of the chronic ciliated epithelium, chronically affected ciliated epithelium. I mean to say दिस एंटीरियर वन थर्ड ऑफ द नेज़ल कैविटी, इसके अंदर जो म्यूकोज़ा मौजूद होती है उसमें आपको एक तो पेरीग्लैंडुलर फाइब्रोसिस मिलेगी, ग्लैंड्स के अराउंड फाइब्रोसिस होगी और ग्लैंडुलर एक्टिविटी कम हो जाएगी, और दूसरा जो सिलिएटेड एपिथेलियम है उसकी मेटाप्लेजिया हो जाएगी, ठीक है। इसके नतीजे में क्या होगा, ग्लैंड्स काम करना छोड़ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे म्यूकस का एक बेड जमा हो जाएगा, ठीक है, म्यूकस बेड जमा हो जाएगा। सो देयर विल बी अ विस्कड स्टेजनेंट म्यूकस ब्लैंकेट, जिसकी वजह से एक पूरा क्रस्ट बन जाएगा, ठीक है। एंड दिस क्रस्ट आर नॉट फाउल स्मेलिंग, ओके। प्रीवियस जो एट्रोफिक राइनाइटिस थी उसमें क्रस्ट बड़े फाउल स्मेलिंग होते थे, यहाँ पे दे आर नॉट फाउल स्मेलिंग। सो व्हाट इज़ हैपनिंग, पेरीग्लैंडुलर फाइब्रोसिस, मेटाप्लेजिया ऑफ एपिथेलियम, जिसके नतीजे में क्या होता है, यहाँ पे म्यूकस का ब्लैंकेट जमा हो जाता है, बड़ा हार्ड होता है, स्टेजनेंट होता है, सही बच्चा, इस तरीके से। इफ़ आई टेक यू हियर, इट इज़ ट्रीटेड बाय करेक्शन ऑफ द ऑक्यूपेशनल सराउंडिंग, क्योंकि ये ड्राई डस्टी इन्वायरमेंट में होता है, हॉट इन्वायरमेंट में होता है, और नोज़ के अंदर लुब्रिकेंट्स लगाते रहें ताकि जो हार्ड क्रस्ट बन रहे हैं वो ना बने, और बन रहे हैं तो सॉफ्ट हो जाएं। Then comes another condition, that is rhinitis caseosa. It is the rare condition, it affects the males. It's a condition जिसमें क्या होता है कि जो, let's suppose this is your nose and this is the septum, यहाँ पे let's suppose ये sinus है ना, maxillary antrum nose में open होता है, तो let's suppose if there is any infection in the maxillary antrum and the cheesy material is produced in the sinus, maxillary sinus, and that cheesy material is drained into the nose. So rhinitis caseosa is a rare condition. It affects the male in which the cheesy material enters the nose from the maxillary antrum. Results from the failure of the resolution of the sinusitis when its secretion inspissates and foul cheesy debris is excluded into the nose. पेशेंट को साइनसाइटिस हुई, ठीक है, लंबे अरसे के लिए रही, वो रिजॉल्व नहीं हुई, जिसकी वजह से यहाँ पे चीज़ी मटेरियल प्रोड्यूस हुआ, वो एक्सक्लूड होता है, ड्रेन होता है, नोज़ में आता है। दिस इज़ द राइनाइटिस केशियोसा। केशिया वैसे भी चीज़ी मटेरियल के लिए यूज़ होता है। इट इज़ ट्रीटेड बाय रिमूवल ऑफ द डेब्रिस एंड द ग्रेनुलेशन टिश्यू। जो देखो मेन स्टेज तो साइनसाइटिस को ट्रीट करना है, जो ड्रेन होकर फ्लूइड यहाँ आ रहा है उसको रिमूव करना है। उसके बाद कम से ट्यूबरक्लोसिस बेटा। प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस नोज़ की बहुत रेयर होती है, ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ नाक के अंदर टीबी हो। नेज़ल इन्वॉल्वमेंट में अक्कर इन केस ऑफ मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस और बाय द फिंगर नेल इनोकुलेशन। ये समझ आता है कि एक इंडिविजुअल है जिसको पल्मोनरी टीबी है, फिर वो ब्लड वेजल के थ्रू स्प्रेड होकर नोज़ में आ गई, दैट इज़ द मिलियरी टीबी, ये समझ आता है। या फिर फिंगर नेल्स पे बैक्टीरिया मौजूद हो और फिर वो आप नोज़ में ले आओ, तो फिंगर नेल्स के थ्रू भी इनोकुलेट हो सकता है, ठीक है। एंटीरियर एंड्स ऑफ द इन्फीरियर टर्बिनेट्स
and the anteroinferior part of the nasal septum are commonly affected in the TB of the nose, right? प्राइमरी टीबी नहीं होता नोज़ का, बहुत रेयर है, सेपरेट हो सकता है। पल्मोनरी टीबी आगे आके नोज़ में जा सकता है। फिंगर के थ्रू आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनोकुलेट कर सकते हो नोज़ के अंदर, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। कौन सा पार्ट नोज़ का अफेक्ट होता है? इंटीरियर एंड ऑफ द इन्फीरियर टर्बिनेट एंड द एंटेरो-इन्फीरियर पार्ट ऑफ द नेजल सेप्टम, ठीक है। इन द इनिशियल स्टेजेस लोकलाइज्ड ट्यूबरकुलोमा इज प्रेजेंट इन द इन्फीरियर टर्बिनेट, इन द सेप्टम ट्यूबरकुलोमा बनता है। और उसके बाद क्या होता है? अल्सरेशन होती है और फाइनली परफोरेशन हो जाती है नेजल सेप्टम की, ठीक है। मैंने क्या बताया कि वैसे भी ये इन्फीरियर टर्बिनेट और आपके नेजल सेप्टम को इन्वॉल्व कर दें। लेट्स सपोज ये आपका नेजल सेप्टम है, तो क्या होता है इनिशियली, तो यहाँ पे ट्यूबरकुलोमा बनता है, फिर इससे नीचे अल्सरेशन होती है और परफोरेशन होती है और फाइनली एक नेजल सेप्टम के अंदर कंप्लीट कुछ इस तरीके से ये सेप्टम है, ठीक है। बीच में एक सुराख बन जाता है, परफोरेशन बन जाती है इस तरीके से, ठीक है, राइट बेटा। सो अल्सरेशन एंड फाइनली परफोरेशन ऑफ द नेजल सेप्टम। बायोप्सी ऑफ द लेजन इज डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटेड बाय द एंटी टीबी थेरापी। अगर आपको लगता है कि आप नोज़ को एग्जामिन करते हो और आपको यहाँ पे ट्यूबरकुलोमा मिलता है, तो यहाँ से आप बायोप्सी लोगे और वहाँ पे आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिख जाएगा। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट वही जो इसकी एंटी टीबी थेरापी चलती है, आइसोनियाज़िड, रिफैम्पिन, पैराजिनामाइड, एथम्बुटोल, ठीक है, इस तरीके से। सिफिलिस की जहाँ तक बात है बेटा, तो सिफिलिस किससे होता है? ट्रेपोनिमा पैलाइडियम बैक्टीरिया से, ठीक है। और ट्रेपोनिमा पैलाइडियम causes the nasal syphilis, yeah. So it can be congenital and can be acquired. Most commonly involved side is the nasal septum, most commonly involved, but the lateral walls may also be involved, but most commonly जो है वो nasal septum involve होता है, सही है। प्रॉब्लम क्या होता है इन्फेक्शन की वजह से? अल्सरेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू। नेजल सेप्टम में परफोरेशन हो सकती है, वही टीबी वाली प्रेजेंटेशन है कि सेप्टम को इन्वॉल्व किया बैक्टीरिया ने, परफोरेशन करा दी और सॉफ्ट टिश्यू में भी अल्सरेशन डिस्ट्रक्शन होती है, सही है। और इसकी डैमेज की वजह से सेडल नोज डिफॉर्मिटी देखने को मिल सकती है, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ द नेजल सेप्टम डिस्ट्रक्शन, नेजल ब्रिज अंदर सिंक हो जाती है, दब जाती है, अंदर बैठ जाती है, जिसकी वजह से नोज़ आगे से इतना पॉइंटेड नहीं रहता, बल्कि वो फ्लैट हो जाता है, जिसको हम इसको सेडल नोज डिफॉर्मिटी कहते हैं, सही है। इसके जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं बच्चा, उसमें सीरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, वो जो टिपिकल टेस्ट होते हैं इसके, सिफिलिस के VDRL और उसके अलावा FTA और ऑल द अदर यू नीड, आई डोंट थिंक यू नीड टू इवन रिमेंबर, बट या मेन स्टे इज़ द बायोप्सी ऑफ द नेजल लेजन, क्योंकि जहाँ पे लेजन है, अल्सरेशन है, परफोरेशन है नोज़ के अंदर, वहाँ से आप बायोप्सी लेंगे बेटा, तो आपको वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्फर्म हो जाएगा। तो देयर विल बी द प्रेजेंस ऑफ द ट्रेपोनिमा पैलाइडियम। लेप्रोसी ऑफ द नोज, इट्स द क्रॉनिक ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन ऑफ द नेजल मिकोजा कास्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्रा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पहुँचा कैसे? नाक के अंदर फिंगर नेल इनोकुलेशन, नेल्स अगर फिंगर आप इसलिए नाक में नहीं डालनी चाहिए, नोज़ में नहीं, ना कोई इंस्ट्रूमेंटेशन करनी चाहिए, ना कोई फिंगर यूज़ करनी चाहिए, सही है। सो फिंगर नेल इनोकुलेशन मोस्ट ऑफ द केसेस यही होता है, जिसकी वजह से लेप्रोसी आता है नोज़ के अंदर और अंदर इन्फेक्शन कराता है, क्रॉनिक ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन कराता है, जिसकी वजह से सेप्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसमें परफोरेशन हो जाती है, सही है। चलिए आल्सो इसकी फिर एंटी टीबी बोल रहा हूँ, एंटी लेप्रोसी थेरापी आती है, उसमें रिफाम्सिन, नाइसोनियाज़ाइड, डेप्सॉन, ठीक है, दे आर रियली गुड अगेंस्ट द माइकोबैक्टीरियम लेप्रा। फ्यू मोर कंडीशंस लाइक ल्यूपस वल्गैरिस कास्ड बाय विच बैक्टीरिया? ट्यूबरकुल बेसिलाई, लो वायरलेंस बैक्टीरिया होता है, सही है। नोज़ पिकिंग की वजह से, वही फिंगर इनोकुलेशन की वजह से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, नोज़ के अंदर इन्फेक्शन करता है, ट्रीटमेंट इसका वही है जो कि टीबी का है, सही है बच्चा, इस तरीके से। देन कम्स राइनोसेक्लेरोमा। राइनोसेक्लेरोमा इज द क्रॉनिक ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन ऑफ द नोज and it is not caused by Mycobacterium lepra, it is caused by gram-negative bacillus of the Frisch, gram-negative bacillus of the Frisch, एक ये वैरायटी, या फिर क्लिप्शियला क्लिप्शियला राइनोसेक्लेरोमेटिस, तो दो बैक्टीरिया हैं, या तो बेसिलस ऑफ द फ्रिश या फिर क्लिप्शियला राइनोसेक्लेरोमेटस। 3 स्टेजेस होती हैं राइनोसेक्लेरोमा की, जिसमें पहले नेजल मिकोजा एट्रोफिक हो जाती है, फिर उसके बाद उसकी हो जाती है, फिर आती है ग्रेनुलोमेटस स्टेज, जिसको टीमिफेक्टिव स्टेज भी कहते हैं। तो पहले एट्रोफी होती है मिकोजा की, फिर ग्रेनुलोमा बनते हैं और फिर फाइनली आती है साइकेट्राइजिंग
साइकेट्रिजिंग स्टेज, ठीक है, इट्स फाइनल फेस ऑफ एनी डिजीज, इसके बाद रेजोल्यूशन हो जाती है, सही है। सो इस तरीके से बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, 3 स्टेजेस में ग्रो करता है एंड इट्स ईजी। देन कम्स द वैगनर ग्रेनुलोमेटोसिस ऑफ द नोज। बाय द वे ये एक मल्टी सिस्टम डिजीज़ होती है वैगनर ग्रेनुलोमेटोसिस, ठीक है। इटियोलॉजी अननोन है, प्राइमरीली इट इन्वॉल्व्स द अपर एंड द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड द किडनीज, और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नोज़ भी आ जाता है। क्या प्रॉब्लम होती है नोज़ में? नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, नेजल डिस्चार्ज, समटाइम्स ब्लडी डिस्चार्ज, ब्लड स्टेन डिस्चार्ज। एंड एग्जामिनेशन करोगे तो देयर विल बी थिकनिंग ऑफ द नेजल म्यूकोजा। इस थिकनिंग की वजह से तो ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से तो डिस्चार्ज आ रहा है। एंड ऑन एग्जामिनेशन यू मे सी देयर इज़ अल्सरेशन इन द मे बी सेप्टल वॉल में, मे बी लेटरल वॉल में, क्रस्ट फॉर्मेशन, ठीक है। फीचर्स आर मोर सिमिलर टू एट्रोफिक राइनाइटिस, और डायग्नोसिस के लिए आप बायोप्सी लेते हो, नेजल बायोप्सी ऑफ द नेजल ग्रेनुलेशन। इट विल शो द प्रेजेंस ऑफ द एपिथेलॉइड नेक्रोटाइजिंग ग्रेनुलोमास, नेक्रोटाइजिंग ग्रेनुलोमा मिलेंगे, ठीक है। तो आप इसको डिस्टिंग्विश कैसे करोगे टीबी से? टीबी में बनते हैं नॉन नेक्रोटाइजिंग ग्रेनुलोमा। हेयर यू विल कम टू सी नेक्रोटाइजिंग ग्रेनुलोमा, राइट। एंड या the fibrinoid necrosis and the focal vasculitis, these are the important examination findings. The possible treatment in this case is the high dose systemic steroids, which result in the rapid clinical improvement, and also the cytotoxic drugs to improve the inflammation. And yeah, so if I keep it easy, then vaginal granulomatosis is a multi-system disease, जिसमें मेनली जो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं किडनी और रेस्पिरेटरी सिस्टम है, अपर और लोअर। अपर में फिर नोज इन्वॉल्व होता है। पेशेंट कंप्लेन क्या करता है? नेजल ऑब्स्ट्रक्शन और डिस्चार्ज, ठीक है। एग्जामिनेशन करोगे, नाक के अंदर क्रस्ट होंगे, अल्सर्स होंगे, ठीक है, फीचर्स एट्रोफिक राइनाइटिस वाले होंगे। सो कीप इट ईजी। लास्टली कम्स बेटा मिड लाइन लीथल ग्रेनुलोमा। इट्स द क्रॉनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज. It's very slow and progressive destruction of the nose and the mid facial region as well, ठीक है। बस it is considered as the malignant lymphoma and it responds well with the local radiotherapy. So there is the granuloma formation involving not only the nose but the mid facial region as well. So this is all about beta this chapter, that is the chronic inflammatory conditions. And yeah, that's it beta. Thank you so much. Class dismissed.